तो जिसको भी बात करनी है उनको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा. And question answer sessions we will take at the end. गीता आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Hello everyone. I have put the link of our Facebook Live also. So if you all want in your respective chat groups, you all can paste that so that anybody else wants to join it also, they can join. All right. One second. I'm sending it to all. अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में उसको हम रिकॉर्डेड यूट्यूब पे भी डालेंगे. Okay, am I audible to all of you all now? Yes, ma'am. Yeah. Okay, so Dr. Kshitija will share with us a PPT, and before she does that, I just want to give. First, you have to pin yourself. Okay. So basically, before we start off, I just want to welcome all of you all to this talk that Dr. Kshitija is going to give us on how yoga and Ayurveda is going to have a beautiful impact on the current pandemic. You know, we're all suffering it one way or the other. And in an attempt to actually help you all, she has decided to give you all this talk. Dr. Kshitija, ma'am, what I can say is that she's amongst the most prolific people I have come across. She is like an Ayurvedic doctor from Ayurvedic Medical Science, Pune University. She's a BA in Sanskrit. She's a Yoga Pandit from Vidyadham, Nashik. Apart from that, she's also an MSc in Yoga from S. Vyasa University. This is just a few of her certifications. She's a student perpetually, and she encourages us to study and learn always. She started Kshitij Center officially in sometime in the 2000s, but she started teaching in 2000, and in 2011 the center at Citadel started. We've had 9 classes minimum running every day prior to the pandemic, but after the pandemic also offline we have started in August. We have around 5 classes. In the online batches we have close to 5 classes running every day, and we have a good turnaround. So I guess now I would like to hand over the mic, if you will, to Dr. Kshitija ma'am.
and she will take it from here. Please pay attention to what she says because it can really change your life. Thank you guys and enjoy the session. Ma'am, all yours. Yeah, so in Pune, I have started practicing yoga in 2000, and Ayurved practice actually from 1995. I am practicing Ayurved in Pradhikaran, and after my marriage, going to Kenya, New Zealand, and then when I came back here, settled here in 2001, I have started my own classes in many areas in Camp and Salon KVR in IBM Road, and gradually it increased. बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से मिला, और 2010 में खुद का हमने शुरू किया छोटा से फ्लैट में, और वहां पर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला। फिर 2014 में ये 2000 स्क्वायर फुट का कमर्शियल प्लेस लेके यहाँ शुरू किया, वो भी ज्यादा भर गया, तो अभी ऊपर का और 2000 स्क्वायर फुट का लेके वहां पर भी हम कर रहे हैं। Before pandemic, we have 9 batches on first floor, 4 batches on second floor, so 13 batches we used to run, and around 300 to 400 students used to come every day here for practice. Along with, we are having Ayurved consulting. Me and some more doctors are associated with me for consultation. We are having Ayurvedic medicines for the treatment, and 2 Panchakarma rooms well equipped with 4 therapists, ladies, gents. वो थेरेपी पंचकर्म थेरेपी भी यहाँ पे हम बहुत अच्छे से करते हैं। Equally, we are now, because of the pandemic lockdown, we have started consulting online also, and we are sending medicine by courier to them. Our medicines are going all over the India and abroad also. So now everybody is close to us. अभी ये location priority नहीं रहा कि आप बहुत दूर है, अभी हम सबके नजदीक है और आज हम सबके घर में है। So we are now very close to each other. We can communicate each other very closely. लेकिन ये जो पैंडेमिक चल रहा है, तो अभी इसका सेकेंड वेव आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई तो इलाज हमें अभी करना पड़ेगा। हाँ, कौन सा एक मिनट शेयर स्क्रीन। तो अभी हम आज का जो पॉइंट है हमारा, कि ये सेकेंड वेव जो चल रहा है उसमें हम क्या करें। अभी सेकेंड वेव में अभी अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है। गीता, यहाँ पर कुछ शेयरिंग में प्रॉब्लम है, आप शेयर कीजिए स्क्रीन। तो सेकेंड वेव में भी अभी वापस लोग बोल रहे हैं कि वापस लॉकडाउन होगा। बाकी यूरोप में तो पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो चुका है। अभी वहां पर तो वो इधर भी अभी नंबर बढ़ रहा है, रोज नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे आ रहे, तो हम वापस पैनिक हो रहे हैं कि अभी वापस लॉकडाउन होगा क्या, कि अभी तो शुरू हुआ है सब कुछ, वापस हमें बंद रहना पड़ेगा, कि आगे हमें कैसे करना है। तो अभी एक हमें ध्यान में रखना है कि ये पैंडेमिक से तो हमें बाहर आना ही है, और ये बाहर आने के लिए वैक्सीन आज सीनियर सिटीजन को मिल रहा है, किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा। आज एक उसका वायरस का एक रूप है, कल दूसरा आएगा, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इवन आफ्टर टेकिंग वैक्सीनेशन ऑल्सो दे आर नॉट गिविंग गारंटी दैट यू विल नॉट गेट कोविड। आज बहुत साल पहले स्वाइन फ्लू आया था जोर में, उसके पहले और HIV,
बहुत सारे फीवर और इन्फेक्शंस आ रहे हैं, तो हमें अगर उसको सामना करना है, तो क्या हम सिर्फ वैक्सीनेशन या मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहेंगे क्या? बहुत जरूरी है, जो हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं, वो है अपनी खुद की इम्यूनिटी, खुद की इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना। और वो कैसे बढ़ाएंगे, वो आज हमें योग आयुर्वेद उसमें क्या रोल प्ले करता है, वो आज हमें देखना है। नेक्स्ट, ये हमारा सेंटर का एक फोटो यहाँ पे डाला हुआ है, एक्सटर्नल इंटीरियर हॉल वगैरह कैसे है। नेक्स्ट, तो अभी का जो सीजन है वो इसमें बहुत मायने रख रहा है, क्योंकि अभी पेशेंट्स क्यों ज्यादा आ रहे हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि अभी सीजन चेंज हो रहा है, अभी ठंडी खत्म हो रही है, गर्मी शुरू हो रही है, वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन आ रहा है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि बाहर एक तो गर्मी बढ़ रही है, और इवन अपने पेड़ पौधे भी पत्ते छोड़ के नए पत्ते धारण करेंगे, कोयलिया गाना शुरू हो गया है, बहुत सुंदर अपना निसर्ग रूप धारण कर रहा है। और वैसे ही चेंजेस हमारे शरीर में भी आते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी आते हैं। जो ठंडी में कफ हमारे शरीर में जमा हुआ होता है, वो ये सीजन में पिघल के बाहर आना शुरू हो जाता है। दैट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस इफ यू हैव कोल्ड और माइल्ड कफ इन दिस सीजन। नेक्स्ट, लेकिन ये जैसे ही सीजन शुरू हो गया है, हम कहीं पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमने इमीडिएटली फ्रीज में पानी रखा है, ठंडा पानी पीना शुरू किया। अभी एक्चुअली तो हम विंटर में भी ये परहेज नहीं रखते हैं, विंटर में भी हम 12 ऑल 24 घंटे 12 महीने फूड हमारा फ्रोजन, रेफ्रिजरेटर हमारे किचन का, हमारे घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। और कितना बड़ा रेफ्रिजरेटर वो हमारा स्टेटस हो गया है। जितना बड़ा रेफ्रिजरेटर आपके घर में है, उतनी आपकी हेल्थ डाउन है, वो आप समझ लीजिए। फ्रोजन फूड, फर्मेंटेड फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड मतलब कैंड फूड, टीन फूड विथ प्रिजर्वेटिव जो फूड होता है वो, और बासी स्टेल मतलब बासी खाना तो हम सब लोग खा रहे, फ्रिज में रख रख के आज का खाना कल, कल का खाना परसों, ऐसे सब खा रहे हैं। So this is increasing cough in our body a lot. फिर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स दे आर टोटली, दे शुड बी टोटली बैंड। ऑल एरिएटेड ड्रिंक्स किसी ने भी, हम छोटे बच्चों को बहुत प्यार से पिला रहे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम का सीजन गर्मी में है, ग्रीष्म ऋतु में है, अभी स्प्रिंग में नहीं है। और हमारे फूड टाइमिंग्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ फूड हैज गॉन डाउन। अभी मैं डाइट के ऊपर लेक्चर नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि उसमें अगर हम बैठ गए तो पूरा 1 घंटा उसी में जाएगा। फिर और हमारी गलतियां क्या हो रही है हमारे घर में एसी चालू हो गया है, कूलर फैन वो भी जोर से चालू हो गए हैं क्योंकि गर्मी बढ़ गई। और वो भी एसी का टेम्परेचर हमें बहुत कम रखते हैं, इवन ऑफिसेस में जो है बहुत कम रखते हैं। इट हैज टू बी अबाउट 25 डिग्रीज, घर का भी और ऑफिस में किधर भी जो एसी का टेम्परेचर है वो 25 के ऊपर ही होना चाहिए। कूलर फैन उसका जो एयर फ्लो होता है वो डायरेक्टली शरीर पे ना आए, वैसे होना चाहिए। फिर हमारी जो स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो गई है, आजकल रात को 2 बजे भी किसी को फोन किया फटाफट उठाते हैं, या मैसेज किया तो आंसर आ जाता है। लेकिन सुबह के 5 बजे या 6 बजे, वो क्या 8 बजे भी कोई आंसर नहीं देता है। सो सुबह का 8 अभी रात का हो गया है। सो इस तरीके से जो चेंजिंग हैबिट्स हो गई है, दीज आर वेरी डेंजरस हैबिट्स, कि हमारा रात का जागना शरीर में पित्त बढ़ा रहा है, और सुबह का देर तक सोना हमारे शरीर में कफ बढ़ा रहा है। उसके बाद हमारा अनहाइजीनिक लिविंग हैबिट्स, अनहाइजीनिक लिविंग हैबिट्स में बहुत बेसिक, जो हम बहुत सारी चीजें वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं,
और हमारी अपनी जो परंपराएं हैं वो छोड़ रहे हैं। उसमें बहुत बेसिक है, सुबह उठ के आपको अपने शरीर के सभी जो पोर्स है, ओपनिंग्स है, उनको साफ करना है। उसमें क्या आता है, यूरिन, टॉयलेट, संडास बाथरूम जाना वो तो कॉमन है, वो जाना पड़ता है तो जाते ही है। लेकिन सुबह उठ के हमारे नाक साफ करना, आंखें साफ करना, मुंह साफ करना, कान साफ करना, तो उसके लिए पहले तो दांत मांजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम उठ के बेड टी लेते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद दांत मांजना, ब्रश करना, ये आदत हो गई है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। सुबह रात में हमारा जो पूरा शरीर है वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में लगा हुआ रहता है। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स आते हैं उन्हें सेपरेट आउट करके बाहर शरीर के निकालने के लिए शरीर में जितने भी ओपनिंग्स है उसके दरवाजे पे उनको लाया जाता है। और इसीलिए सुबह उठ के स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, ये नेचुरल है, क्योंकि शरीर ये चाहता है कि ये शरीर से बाहर चला जाए। हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो है शरीर की वो सुबह एक्टिव होती है। उसी तरीके से हम देखते हैं सुबह नाक, सर्दी आती है, आंखों में भी कभी कभार हम देखते हैं थोड़ा सा चिकनाहट रहता है। सो ऑल ओपनिंग्स दे वांट टू थ्रो ऑल द टॉक्सिन्स आउट, बट वी आर निग्लेक्टिंग ऑल दैट थिंग्स। हम सुबह उठ के लिपस्टिक लगाएंगे लेकिन अपने चेहरे को, नाक को, मुंह को साफ नहीं करेंगे। तो ये जो हो रहा है वो बहुत गलत बातें हो रही है। आजकल नहाना भी सुबह नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन स्टूडेंट्स, उनको स्कूल सुबह का है, तो अभी तो लॉकडाउन में घर में है तो भी बहुत सारी आदतें लग गई है कि सुबह उठ के नहाते नहीं है, रात को सोते समय नहाएंगे। सुबह उठ के नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्किन के सभी पोर्स वो ओपन होने चाहिए। आपके स्किन का नहीं, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन उससे बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है, शरीर और मन फुर्तीला हो जाता है। सो मॉर्निंग वन हैज टू टेक बाथ कंपल्सरी। आपको शाम को लेना है वो आप दूसरा स्नान अवश्य करें। अगर आपको लगता है बाहर जाके आए, धूल मट्टी लग गई है, दूसरा स्नान अवश्य करें। खाने के बाद दांत साफ करना है वो भी अवश्य करें, लेकिन सुबह का दांत मांजना होना ही चाहिए, सुबह का नहाना होना ही चाहिए। उसके साथ हमारा जो सिडेंटरी वर्क है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम होने से तो और भी ज्यादा सिडेंटरी हो रहा है कि पहले तो उठ के ऑफिस जाना पड़ता था, अभी वो भी नहीं जा रहे, वो भी घर में ही है। और वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, अभी 10-10, 12-12 घंटे घर में बैठ के काम कर रहे हैं। जिनको ऑफिस में जा रहे हैं वो भी ऑफिस में बैठ के ज्यादा काम कर रहे हैं। हेक्टिक शेड्यूल फिजिकल बहुत कम लोगों का हो रहा है। उसमें भी किसी का अगर हेक्टिक शेड्यूल है तो घूमना है, टूरिंग, ट्रैवलिंग, स्टैंडिंग वो होता है, लेकिन एक्सरसाइज किसी की नहीं हो रही है। एक्सरसाइज के लिए दिन भर में अपने आप के लिए कम से कम 40 मिनट्स टू 1 आवर निकालना बहुत जरूरी है। और वो नहीं होने की वजह से ये कफ जमा होने के सब कारण हम इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट, अभी कफ जमा होने से मतलब सर्दी, शरीर ज्यादा कफ होता है तो शरीर बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और इसीलिए नाक बहना, सर्दी होना, तो सर्दी ज्यादा होती है तो वो कफ लंग्स में, फेफड़ों में एक्यूमुलेटेड होता है, उसको बाहर फेंकने के लिए खांसी, और अगर उसमें इन्फेक्शन जमा हो गया कुछ भी तो फीवर, एंड उसके बाद इन्फेक्टिव डिसीजेस का एक चेन लग जाता है। फिर वो ब्रोंकाइटिस होगा, आंखों में होता है कंजंक्टिवाइटिस, इस सीजन में चिकन पॉक्स, बहुत सारी इन्फेक्टिव डिसीजेस इसमें आते हैं। उसी में अभी एक नया नाम ऐड हो गया है, वो है कोविड। नेक्स्ट, अभी ये कोविड क्या है इसकी हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे कि उसमें थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में आपको विजुअल इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा कि क्या क्या हो रहा है। एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि ये वायरस हमारे नाक The में से जाके coronavirus, which causes COVID-19, originated in the city of Wuhan, China. COVID-19 is believed to be transmitted primarily through inhalation. Once infected,
most people experience mild symptoms, including sore throat, headache, fever, a dry cough, shortness of breath, and fatigue. However, in a subset of patients, the virus attacks the lungs, causing a much more serious infection. Small air sacs in the lungs add oxygen to your blood cells. This oxygen is then transported to organs and tissues throughout the body. When the coronavirus attaches to a cell, it begins to replicate within the cell. The body's immune system attempts to destroy the virus, which results in an inflammatory response that causes fluid accumulation in the lungs. As the lungs fill with fluid, the body's available oxygen decreases, which can lead to organ injury and death. The risk of serious complications increases if a person is elderly or has associated medical conditions. Once infected, a person may show no symptoms but can still infect others. What began in Wuhan has now spread across the globe. So, इसने अभी बताया है कि ये किस तरीके से वायरस अपने The coronavirus, which causes नाक में से, मुंह में से शरीर में एंट्री करता है, वहां पे वो अंदर की जो नेजल मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर का, आंखों में भी जाता है, आंखों के जरिए भी अंदर जा सकता है, अगर हमारे हाथ आंखों में लग गए तो वो अंदर जाता है। वहां अगर वहां पे हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब हमारे शरीर के जो लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो उसके साथ फाइट करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, और वो अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हमें ये इन्फेक्शन नहीं होता है। और वहां पे हम सक्सेसफुल नहीं हो गए तो ही ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाके मल्टीप्लाई होके फिर ये सब साइन सिम्टम्स तैयार करता है। और उस तरीके से फिर जितनी हमारी इम्यूनिटी कम, उतना वो स्प्रेड उसका ज्यादा बढ़ेगा। जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उतना हम उस वायरस को वहीं पे रोक सकते हैं। और इसीलिए काफी लोगों को कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी कोई साइन सिम्टम नहीं थे या किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, तो ऐसे भी लोग थे। तो उस तरीके से हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। अब ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए योग और आयुर्वेद में क्या-क्या बताया है, उसका हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी क्लास में जो रेगुलर आने वाले लोग हैं, वो काफी इन नामों से, इन प्रक्रियाओं से परिचित है। So we will not go too much detail in the all processes of this, because we know, and who doesn't know, they can join our classes and they can learn, because everything we are practicing in our class. So cleansing techniques, शुद्धि क्रिया बहुत important है। Cleaning of our body, not externally. Externally is important, as I told you, but internally also we have to clean our body. Kapalbhati is a very basic technique and the best technique for cleansing our lungs, our respiratory tract, our sinuses. पूरे जो म्यूकस हमारे फेफड़ों में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब उसके ब्रोंकाइम में, गले में, साइनसेस में, नाक में जमा है, वो इस प्रोसेस से हम बाहर फेंक देते हैं और वो जमा ही नहीं होने देते हैं। जो अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे म्यूकस जमा होता है फेफड़ों में, वो सेल्स में, वो जमा ही नहीं होगा तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता ही नहीं है। जल नेति, अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्लींजिंग टेक्निक। जिनको भी सर्दी की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बार बार एलर्जी किसी चीज से, नाक बहना शुरू होता है, उनके लिए जलनेती टेक्निक बहुत आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन सीखना पड़ता है। वो भी हम ऑनलाइन उसका भी 1-2 महीने में क्लास लेते हैं। उस समय आप वो ज्वाइन कीजिए और सीख लीजिए। जिन्होंने सीख लिया है वो हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वो होता है नाक में, एक नाक से हम नोस्ट्रिल से नमक वाला गर्म पानी डाल के दूसरे से निकालते हैं। वमन, अगेन इट इज अ वॉमिटिंग प्रोसेस थ्रू सलाइन वाटर। उसमें अभी हमारा जो स्टमक है, दैट इज मेन प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कफ। हम जो भी कुछ खाते हैं
उसको पचाने के लिए एसिड आता है, और वो एसिड शरीर को नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए, उसको कवर करने के लिए वहां पे बहुत सारा म्यूकस सीक्रेट होता है, एंड दैट इज कफ फॉर्मेशन। वो बहुत ज्यादा हो गया तो वो वहां से खून में से एब्सॉर्ब होके लंग्स में जाता है। सो लंग इज इट्स स्टोरेज प्लेस, उसका आश्रय स्थान। कफ पैदा होता है हमारे स्टमक में और जमा होता है हमारे फेफड़ों में। तो इसीलिए जब कोई भी सर्दी खांसी की बीमारी है, हल्का खाना, उपवास, लंघन और डाइजेस्टिव मेडिसिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कफ के साथ। सो उसके लिए हम अग्निसार भी आपको सिखाते हैं, सो इंक्रीज द एपेटाइट और द डाइजेस्टिव पावर। शंख प्रक्षालन, अगेन टोटल बॉडी क्लिंजिंग टेक्निक, and to increase strength of eyes, Tratak. All these are cleansing techniques are very important and should be practiced very regularly. Next, शुद्धि क्रिया जो है, क्लिंजिंग टेक्निक्स हमारे शरीर की ताकत इतनी बढ़ाती है कि कोई भी इंफेक्शन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अटैक आपको कर भी नहीं पाएगा। उससे भी उसके साथ हम बहुत सारे आसनों का अभ्यास करते हैं। आसनों में ये सीजन में, स्पेशली ये सीजन में, स्प्रिंग सीजन में आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना जरूरी है, ताकि जो भी कफ सीक्रेट हो रहा है वो शरीर में ही एब्सॉर्ब हो जाए। तो वो कफ फॉर्मेशन हमारे शरीर का कम हो जाता है और वो मसल्स में स्ट्रेंथ आने के लिए उसको टर्न किया जाता है। सो सूर्य नमस्कार वो भी आप कितने ज्यादा कर सकते हैं वो कीजिए। इसके लिए अभी हमने रथ सप्तमी के दिन 108 सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम भी किया, काफी लोगों ने बहुत अच्छा किया। उसमें अभी ये सीजन में हम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेनियस आसन होल्डिंग या स्ट्रेनियस पोजेस भी करवाते हैं। डायनामिक योगा इसमें ज्यादा होता है, ताकि ये कफ हमारे मसल्स में ही एब्सॉर्ब हो जाए। इससे हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल, हर एक जो प्राणायाम में हम जितना ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं वो हर एक सेल तक पहुंचने का काम ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता है, और जितने मसल्स एक्टिव हो जाएंगे वो ऑक्सीजन वहां पे एब्सॉर्ब हो जाता है। नेचुरली हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का, नो कॉन्स्टिपेशन, तो एक्सक्रीशन हमारा बहुत अच्छा होता है। फैट मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव होता है, और फैट मेटाबॉलिज्म एक्टिव होने से आपकी चर्बी घटेगी, आपका वजन भी कम रहेगा, शरीर हल्का फुल्का रहेगा। जिन्हें भी हार्मोन्स की तकलीफें हैं तो ये आसनों के अभ्यास से हार्मोनल इम्बैलेंस काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, फिर हम बहुत सारे टेक्निक्स प्राणायाम के इस्तेमाल करते हैं। प्राणायाम के पहले हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करते हैं। तो उसमें बहुत सारे तरीके के फास्ट ब्रीदिंग, जलद श्वसन के प्रकार हम करते हैं। डॉग ब्रीदिंग, श्वान श्वसन, रैबिट ब्रीदिंग, शशांक श्वसन, टाइगर ब्रीदिंग, सिंह क्रिया, ये सब हम काफी लोगों ने हमने किया है, हम सब एंजॉय भी करते हैं, जिससे हमारे चेस्ट मसल्स, छाती के स्नायु, हमारा रिब केज जो है, पसलियां है, वो उसकी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है, और वो छाती हमारी स्ट्रांग है, पीठ हमारी स्ट्रांग है, कंधे हमारे स्ट्रांग है, तो ही अंदर जो फेफड़े है, लंग्स है, वो एक्सपांशन, रिलैक्सेशन अच्छे से करेंगे। और उसके लिए दरवाजा, तो उसके लिए वो करना जरूरी है। विदाउट चेस्ट एक्सरसाइज प्राणायाम करेंगे तो वो फेफड़े जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं वो उतने स्ट्रांगली नहीं हो पाएंगे। और फिर उसके बाद हम करते हैं बसरी का प्राणायाम। सेक्शनल ब्रीदिंग में हम लंग्स के जो लोब्स है, नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, उनकी ताकत बढ़ाते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। फिर सूर्य भेदन, नाड़ी शुद्धि, उज्जाई, भ्रामरी, बहुत सारे टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में श्वास लेते हैं 30 to 50 cc, वो ये डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स में हमारी कैपेसिटी इतनी बढ़ती है कि वो हम 3 to 5 लीटर्स इतनी हवा अंदर लेते हैं
1 मिनट में हमारे फेफड़े, हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है वो 15 टू 22 इतना वैरी होता है। सांस 1 मिनट में हम कितनी बार लेते हैं छोड़ते हैं। लेकिन वही डीप ब्रीदिंग में हम सिंपल 4 सेकंड में सांस लेते हैं, 8 सेकंड में छोड़ते हैं, तो 12 सेकंड में एक बार सांस, मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट में हम सिर्फ 5 बार सांस लेते हैं। तो इतना हम हमारे ब्रीदिंग रेट को 1/4 कर देते हैं, इतना कम करते हैं और हमारी फेफड़ों की ताकत हम बचाते हैं इसमें। So this vital energy we are saving and we are finding effects in COVID patients. जिन्हें भी ब्रेथलेसनेस हुआ है कोविड में, जो लोग भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से परेशान थे, उन्होंने हमें इमीडिएट अपने प्राणायाम के वीडियोस भेजे और उन्होंने हमारे साथ प्राणायाम करके, अगर आपका अभी 90 के बिलो ऑक्सीजन लेवल थी, 85, 88, इमीडिएटली आपका प्राणायाम करने के बाद 95 एंड अबव ऑक्सीजन लेवल चला जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर में ये देखा गया है और सभी हमारे पेशेंट्स ने ये किया है और इसीलिए उनका हॉस्पिटल एडमिशन भी बच गया, आगे का कॉम्प्लिकेशन भी बच गया और रिकवरी भी बहुत फास्ट और अच्छे से हो गई। प्रैक्टिस ऑफ बंधास लाइक जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध, ये भी हम रेगुलर करवाते हैं। उसमें भी सांस रोकने की क्षमता हम बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर का प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि उनकी फंक्शनिंग जो है, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट। सो ये जो मैं अभी इफेक्ट्स आपको बता रही थी प्राणायाम के, वही इसमें है कि रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रांग होते हैं, लंग्स स्ट्रांग होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल शरीर का खून में बढ़ जाता है। मेनली म्यूकस जो है, एक्स्ट्रा कफ जो है, वो शरीर से फेफड़ों से, एयर पैसेजेस से, साइनसेस से निकल जाता है पूरा। कंजेशन, नाक ब्लॉक होना, नींद में नाक बंद होना, वो सब बंद हो जाता है। ब्रीदिंग रेट कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में आता है और सांस मतलब रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, किसी भी कंडीशन में हम हमारी सांसों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ब्रेथलेसनेस फील नहीं होगा। नेक्स्ट। प्राणायाम का इफेक्ट सिर्फ हमारी फेफड़ों के ऊपर, हार्ट के ऊपर नहीं है, हमारे ब्रेन के ऊपर है, नर्व्स के ऊपर है, किडनीज के ऊपर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सभी शरीर के हर एक सेल को चाहिए और ऑक्सीजन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलने की वजह से सभी वाइटल ऑर्गन्स जो है वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपकी नींद बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता है, डलनेस, लिथार्जी, आलस पूरा शरीर से भाग जाता है, सर्दी खांसी ये छोटी छोटी बीमारियां भाग जाती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ये कम हो गए, किसी के इनहेलर बंद हो गए। ऐसे भी अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ये प्रोग्राम में मौजूद है, जो अपना फीडबैक बता सकेंगे कि प्राणायाम से उनको कितना फायदा हो गया है। लेकिन 2-3 सेशन में नहीं, आपको 3 से 6 महीने या साल रेगुलर करते हुए आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। जितने साल आप कोई बीमारी सहन कर रहे हैं, उतने महीने तो कम से कम उसको देना है ठीक करने के लिए। हम सालों साल बीमारी से झगड़ते हैं और योगा शुरू होने के बाद अभी मेरा अस्थमा अभी कब ठीक हो जाएगा? हाँ, मैं 1 महीने से कर रही हूँ। बीमारी कब से है? 10 साल से और अभी अभी के अभी खत्म होनी चाहिए। ये जादू नहीं हम कर रहे कोई, इसमें भी आप अपनी विल पावर से, अपनी मेहनत से उसको हटाने जा रहे हैं। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं, करेंगे तो आप ही। और इसीलिए ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बीमारियां दूर हो जाती है, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है नेचुरली, एंजाइटी डिप्रेशन आपका कम होता है, इस क्षण मुझे क्या करना है, अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाता है। और पैनिक की सिचुएशन जो होती है, कुछ भी थोड़ा सा हो गया हम डर गए, हम घबरा के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। कोविड हमारे दूसरी पड़ोस की सोसाइटी में किसी एक को हुआ है तो भी हम यहाँ पे इधर उधर हो रहे हैं कि अभी 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 इधर अपने भी इधर भी आएगा, ये क्या हो जाएगा, बाप रे बाप रे। तो ये पैनिक होने की कुछ भी जरूरत नहीं है।
और ये स्ट्रेंथ, मेंटल कॉन्फिडेंस हमें प्राणायाम से जरूर मिलता है। और कोविड हो भी गया तो भी उससे हम बहुत जल्दी रिकवर होने वाले हैं, क्योंकि हम रेगुलर प्राणायाम करने वाले हैं। तो ये भी कॉन्फिडेंस आपको पक्का होना चाहिए। नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसमें से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसका साथ जैसे ये पैनिक सिचुएशन होता है, मेंटली हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो हम बहुत सारे एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। ओम मेडिटेशन, भ्रामरी मेडिटेशन, ये सब यहाँ के जो हम रेगुलर करते हैं प्रैक्टिस में, इनका इफेक्ट हम देखेंगे तो आप बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है कि शरीर तो बहुत मस्त फ्रेश हो जाता है, शरीर के तनाव चले जाते हैं, but mentally also we feel very much fresh, active, no dullness, no negativity। पूरे नेगेटिविटी जो लोग बाहर से हमें दी जाती है, वो हम खुद निकाल देते हैं। हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन से भर देते हैं और हमें अपना कॉन्फिडेंस हम बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। मेडिटेशन के अभ्यास से हमारी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से बढ़ती है एंड मेनली इमोशनल कंट्रोल हमारे अपने आप पे आ जाता है। छोटी सी बातों के ऊपर डिस्टर्ब होना, गुस्सा होना, घबराना, ये नहीं होता है और हम कोई भी सिचुएशन के ऊपर सोच विचार करके उसको रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका। अभी पोस्ट कोविड भी काफी लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है, तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये एक वीडियो हम देखते हैं। डॉक्टर रविशेखर झा जो है उनका। मेरा नाम डॉक्टर रविशेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हूँ। कोविड को इंडिया में आए हुए करीब 9-10 महीने हो चुके हैं और कई सारे पेशेंट इस बीच में हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स के, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के देख चुके हैं। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है जो इनके पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं वो माइल्ड और सीवियर में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हल्के सिम्टम होते हैं बहुत सारे लोगों को, करीब 4 से 6 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, फटीग, जॉइंट पेन, इस तरह की चीज़ें चलती है। कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम तक, करीब 1 से 1.5 महीने तक लो ग्रेड फीवर अराउंड 99 के आसपास तक फील करते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम केस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोगों को बहुत लंबे टाइम तक नेज़ल स्टफीनेस रहती है, कुछ लोगों को बहुत लंबे टाइम तक रनिंग नोज़ रह सकता है। कुछ लोगों ने बॉडी पे रैशेस और हेयर फॉल भी नोटिस किया है, जो एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन ही होता है। जो सीवियर केस हैं, सीवियर केस मोस्टली वो केस होते हैं जिनको कई बार हॉस्पिटल में रह के ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज़ हो गए हैं। इस तरह के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं पोस्ट कोविड हार्ट अटैक या पोस्ट। वो बेसिकली आपके हार्ट के या ब्रेन कोविड पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के। जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है वो बेसिकली आपके हार्ट के या ब्रेन की आर्टरीज में ब्लड क्लॉट के जमा होने से होता है। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है वो आपके लंग के आर्टरी या वेन के अंदर क्लॉट जमने से होता है। तो मैक्सिमम केस में जो आपके डॉक्टर्स हैं वो आपको कोविड से डिस्चार्ज होने के बाद स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जो ब्लड थिनर्स होते हैं, जिनको आपको बिना डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोविड से डिस्चार्ज किया गया है और आपको फील होता है कि आपको बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है या आपको सडनली किसी बॉडी के एक साइड में वीकनेस हो रही है, चेस्ट पेन चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उतनी ही ज़्यादा क्यूरेबल होती है। आपको अपने खाने पीने का भी बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए। हमेशा आपको वही खाना खाना चाहिए जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, बहुत सारे कोविड पेशेंट को इकोस्प्रिन नाम की मेडिसिन दी जाती है, जिससे गैस्ट्राइटिस होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। कई बार कोविड के बाद लोगों को पैनक्रेटाइटिस नाम की बीमारी भी काफ़ी होती है, पर अच्छी चीज़ ये है कि जो कोविड के बाद पैनक्रेटाइटिस होता है वो मोस्ट ऑफ द केस में स्पॉन्टेनियसली रेमिट कर जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। इस वीडियो का एक छोटा सा पर्पस बताने का ये है कि अपने कोविड के बाद वाले सिम्टम, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो, कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने डॉक्टर से कंटिन्यूस टच में रहना चाहिए।
हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेच एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, ये सब आप रेगुलर करते रहें, आराम से आप कोविड के फेज से निकल जाएंगे। थैंक यू। अभी जो ये डॉक्टर ने बोला है वही मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ कि हमारे पास अभी काफी पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो जिन्हें कोविड हो चुका है, होके गया है, और अभी ये इस तरीके से शारीरिक डलनेस, पेन, जॉइंट पेन, हेयर लॉस है, स्किन रैशेस है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, और कुछ लोग ब्रीदिंग डिफिकल्टी का प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत बार क्या होता है, कोविड में एक शरीर में एंजाइम रिलीज होके शरीर का खून पतला होने की जो प्रक्रिया है वो कम होती है, और इसके लिए वो खून में ब्लड क्लॉट्स जम के, वो क्लॉट्स अगर हार्ट में अटक गए तो हार्ट अटैक, वो क्लॉट्स अगर ब्रेन में अटक गए तो ब्रेन स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, और अगर वो क्लॉट्स हमारे फेफड़ों के ब्लड वेसल्स में अटक गए तो लंग्स डैमेज होना, फेफड़े डैमेज होना, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस इसमें पाए जाते हैं। तो इसके लिए वो ना हो, इसके लिए वो खून पतला किया जाने की दवाई होती है। लेकिन बहुत सारे लोग, इतने सारे अभी सीवियर एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, ये सारी दवाइयां हैं, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हमारे पास काफी लोग आ रहे हैं, और ये साइड इफेक्ट्स पोस्ट कोविड का भी है, और उन हायर एंटीबायोटिक्स और दवाइयों के जो डोसेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसी की वजह से भी शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि पोस्ट कोविड ये सब तकलीफें है उसमें से हमें कैसे बाहर निकलना है, और उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट, तो अभी हम जैसे योग का देखा वैसे ही आयुर्वेद का भी रोल अभी देखने जा रहे हैं। उसमें मेनली हम 4 पार्ट में बात करेंगे। एक तो डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, पंचकर्म और मेडिकेशन। नेक्स्ट, अभी रोल ऑफ डाइट में जैसे पहले हमने जो स्लाइड में देखा कि हम क्या क्या गलत खा रहे, तो बस वो जो भी गलत खा रहे वो नहीं खाना, मतलब फ्रीज का कोई आइटम, फ्रोजन जो आता है, अभी इजी टू कुक आ गया है, एवरीथिंग दैट इजी is very difficult to digest, very difficult to excrete from the body, and it accumulates in the body as a form of toxins. तो इसीलिए ये easy to cook वाले जो भी चीजें होती है वो not very good for our body. So fermented मतलब अगर आप जो साउथ इंडियन में बोलेंगे हम इडली डोसा खाएंगे ही नहीं क्या, तो वेरी स्मॉल फर्मेंटेशन, फ्रेश फर्मेंटेशन जो होता है एक दिन का, दैट इज गुड। लेकिन हम जो रख रख के उसको 4-5 दिन 8 दिन चलाते हैं, दैट इज नॉट गुड। एक बार इडली का आटा बना दिया, 8 दिन चली रहा है वो, दैट इज नॉट गुड। यू हैव टू फिनिश इन 2 or 3 days मैक्सिमम। और उसको हम बाहर रख के उसको कितना उसमें फर्मेंट कर रहे हैं, खट्टा दही या बहुत सारी चीजें जो है फर्मेंटेड, प्रोसेस्ड तो बहुत सारी चीजें अभी बाजार से कुछ भी लेके आते हैं, जाओ मॉल में जाके पता नहीं क्या क्या भर के आ रहे हैं। स्पेशली जो लोग अकेले हैं, और एक्चुअली आज की यंग जनरेशन वो तो प्रोसेस्ड फूड के ऊपर ही जिए जा रही है। डाइट फूड के नाम पे भी प्रोसेस्ड फूड आ रहा है। और जैसे मैंने बोला स्टेल फूड, एवरीथिंग 3 घंटे के बाद जो हम खाना खाते हैं, कोई भी पकाया हुआ खाना, अभी रोटी सब्जी दाल चावल बना है, वो 3 घंटे के अंदर खाया तो वो फ्रेश है, सात्विक है। अन्यथा वो फ्रीज में रख के खाएंगे, नेक्स्ट डे खाएंगे, वो सब बासी फूड है। हम जो बिस्किट्स खाते हैं बाजार से जो आते हैं वो सब क्या होता है, वो बासी फूड ही होता है। तो आप ब्रांडेड कितना भी हेल्दी ओट्स ये वो सब खाओ, प्रोसेस्ड जो होता है, ड्रिंकिंग बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं दूध में डालने के लिए, दैट एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड। तो इसीलिए जो भी आप खाएंगे वो फ्रेश खाओ, घर का खाओ,
नो जंक, नो हेवी स्वीट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा मलाई के मिठाइयों वाले जो चीजें हैं, चॉकलेट्स है, केक, पेस्ट्रीज, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग कफ इन योर बॉडी। हाँ, आपको खाना है, ऐसे नहीं कि मतलब, लेकिन उसका लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हम भूल जाते हैं और इसीलिए ये प्रॉब्लम होते हैं। नो चिल्ड ड्रिंक्स इन दिस सीजन, स्पेशली स्प्रिंग सीजन। फ्रीज में रखे हुए चिल्ड कोई भी पानी भी नहीं, एरिएटेड ड्रिंक्स तो मैं ना ही बोल रही हूँ, आप गर्म पियेंगे तो भी नुकसान करने वाले हैं। एंड आइसक्रीम भी ये सीजन में नहीं, आप ये महीना छोड़ के अप्रैल शुरू हो जाएगा तब आप आइसक्रीम खा सकते हैं। नो मिल्क शेक्स, फ्रूट मिल्क शेक्स, दूध और कोई भी फल साथ में नहीं खाना है। सो डूज में वही आ गया, फ्रेश फूड, फ्रेशली कुक फूड। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, हम अभी बहुत सारा प्रोटीन डाइट और पता नहीं कीटो डाइट और बहुत सारे डाइट को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा ना के बराबर, नो रोटी, नो चावल, ऐसे कुछ लोग वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, बट दैट इज समथिंग अगेन वेरी डेंजरस, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज बेसिक नीड ऑफ आवर ब्रेन। अगर हमारे दिमाग को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो शुगर मिलती है वो नहीं मिली तो वो दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए वो लिमिटेड फॉर्म में हमें चाहिए ही होता है। सो बैलेंस डाइट जो हमारा इंडियन खाना है वो बहुत बैलेंस्ड है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उसके ऊपर घी होता है, बाद में साथ में ग्रीन चटनी होती है, पापड़ होता है। that everything is very tasty and very balanced diet, जो आपको सभी मिनरल्स, विटामिन्स देते हैं। अगेन क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ मील्स। क्वांटिटी, कुछ भी खाने के बाद आपको वापस अगर किसी ने कोई खिलाया तो शरीर में जगह होनी चाहिए। तो आपको अपनी स्टमक की कैपेसिटी जो है उससे आधा ही सॉलिड फूड लेना है, 1/4 लिक्विड, मतलब पतली दाल है, सूप है, छाछ है, तो वो जो भी है वो 1/4, पानी भी पिया है तो उसी में, एंड 1/4 शुड बी एम्प्टी फॉर डाइजेशन। तो इतना ही खाना होना चाहिए। हम ठूस ठूस के खा रहे, फिर उसके बाद टीवी के सामने बैठ गए, वापस कुछ हाथ में आ गया, चिवड़ा आ गया, वो आ गया, खा रहे। तो बस पेट को समझ के हम नहीं खा रहे, बस जीभ को समझ के, जीभ को चाहिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, खा लिया, इस तरीके से खा रहे। तो ओवर ईटिंग भी हो रहा है हमारा और फ्रीक्वेंट ईटिंग भी हो रहा है। तो टाइमिंग्स हमारे खाने का पूरा चला गया है, नो फिक्स टाइमिंग। अब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कम से कम 8 के आसपास, जल्दी करेंगे तो बहुत अच्छा, और वो उतना करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत नहीं होती है। सभी सीजनल सब्जियां, सभी सीजनल फ्रूट्स आपके खाने में रहेंगे। मीट भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो हफ्ते में 1 या 2 बार, बहुत रोज का रोज मीट नहीं चाहिए। उसके साथ फ्रेश सलाड्स, ये सब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, मसाला, ये टोटली अवॉइड आपको करना है। और इस तरीके से हम खाने में चेंजेस लाएंगे तो कोई भी खाना हमें नुकसान नहीं करेगा। हमारे टिपिकल जो डाइट पैटर्न्स है, चाहे वो नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, महाराष्ट्रियन है, वो जो थाली सिस्टम है वो उतनी थाली खाने की अभी हमारी क्षमता नहीं रही, लेकिन उसमें से उस तरीके का जो पैटर्न है वो सिंप्लीफाई करके हम खाने में रख सकते हैं। और सिर्फ नाश्ता दोपहर में और शाम में, रात में खाना, बस इतना 3 समय जरूरी काफी होता है। उसके अलावा हमें खाने की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट। अभी इसके बाद हम देख रहे हैं कि रोल ऑफ पंचकर्म। पंचकर्म में आता है वमन, मतलब आयुर्वेदिक प्रोसेस होती है, उसपे हम वमन और विरेचन में 5 दिन आपको पहले घी पिलाया जाता है, शरीर में पूरे शरीर का मसाज और स्टीम बाथ, फुल बॉडी मसाज, स्टीम बाथ दिया जाता है। और फिर 7वें दिन आपको दवाई देके
जिनका कफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, अस्थमा जैसे बीमारियां है, उनको हम वमन की प्रोसेस, उल्टी काढ़े पिला के उल्टी करवाते हैं, उसको वमन बोला जाता है। इवन थायराइड प्रॉब्लम्स, ईएनटी प्रॉब्लम्स, उसके लिए ये वमन का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। कफ और पित्त की बीमारियां बहुत कम हो जाती है। विरेचन ऐसे ही होता है, घी पिला के स्टीम बाथ मसाज होता है 5-6 दिन, और फिर 7वें दिन आपको दवाई देके पूरे जुलाब करवाए जाते हैं, जिससे पित्त और वात की बीमारियां जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। पूरा शरीर डिटॉक्स होता है, पूरा ऑयलिंग करके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑयलिंग से सभी चैनल्स खोल के, जहां पर भी ये टॉक्सिन्स छुपे हुए हैं, निकल के मेन ब्लड स्ट्रीम में लाए जाते हैं और थ्रू एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में लाए जाते हैं और फिर ये प्रोसेस से निकाले जाते हैं। So these two processes are very important. Even for fit people, normal people also, they are very beneficial. पेशेंट्स के लिए तो फायदा करेगी ही करेगी, लेकिन आपको आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आपके लिए कौन सा कर्म सुटेबल है वो देख के आपको करना पड़ता है। नस्य ये नेजल ट्रीटमेंट है, अगेन ये सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सर्दी, एलर्जी वाली सर्दी, रनिंग नोज, ये काफी लोगों को हो रहा है, तो उसमें पूरे चेहरे का इसमें मसाज किया जाता है, स्टीम दी जाती है और मेडिकेटेड ऑयल आपके नाक में डाला जाता है अच्छी क्वांटिटी में, और फिर वो सिक्रीशंस ज्यादा आके वो पूरा कफ बाहर निकाला जाता है। ये नस्य की ट्रीटमेंट होती है। वमन, विरेचन, नस्य, नस्य ये कोविड में भी चलता है। वमन विरेचन आपको कोविड ना हो, स्ट्रेंथ बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, उसके लिए फायदा करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को कोविड होके गया है तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलने के लिए भी ये प्रोसेस का बहुत फायदा होता है। इमीडिएट टॉक्सिन्स शरीर से निकल के आप वापस अपने नॉर्मल जिंदगी में आ सकते हैं। रक्त मोक्षण, दैट इज ब्लड लेटिंग, मतलब यहाँ पर फोटो में दिखा रहे हैं कि आपके शरीर से लीच लगा के, लीच थेरेपी, लीच मतलब जलौका, जड़ू, उसको ये छोटा कीड़ा होता है और उसको लगाया जाता है और वो खून सक करता है हमारे शरीर से। जब वो सक करने शुरू होता है तब वो थोड़ा सा सेंसेशन होता है इंजेक्शन जैसा, और बाद में वो उसकी कैपेसिटी जितनी है उतना वो खून सक कर लेता है। लेकिन ये करते हुए उस समय वो हिपैरिन नाम का एंजाइम शरीर में छोड़ता है, तो वो भी एंटीकोएगुलेंट मतलब रक्त खून को पतला करने वाला एंजाइम है, और उसकी वजह से उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, सूजन बहुत अच्छे से कम हो जाती है, दर्द बहुत कम हो जाता है। और मेनली आफ्टर कोविड जो खून में क्लॉट्स होने की वजह से जो हमने कॉम्प्लिकेशन देखे कि पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो ये सब अवॉइड करने के लिए इस रक्त मोक्षण के प्रोसेस का बहुत फायदा होता है। और ये नेचुरल तरीके से, जैसे वो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत ज्यादा आप इकोस्प्रिन वगैरह ब्लड थिनर लेते हैं तो उनकी भी तकलीफ हो सकती है, उनसे भी एसिडिटी बढ़ती है। तो ये नेचुरल ब्लड थिनर हम इस जरिए शरीर में डालते हैं और इम्प्योर ब्लड आपका सक किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इम्प्योर ब्लड जैसे ही निकलता है, प्योर ब्लड अपने आप आपका शरीर फॉर्म कर देता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव प्रोसेस। बस्ती मतलब आयुर्वेदिक एनिमा, इसमें पेट कमर का पूरा मसाज उसमें की जाती है और फिर आपको एनिमा दिया जाता है। एक दिन तेल का एनिमा, एक दिन मेडिकेटेड काढ़े का एनिमा दिया जाता है। तो ये जो एक दिन तेल का एनिमा, एक दिन काढ़े का एनिमा, अल्टरनेट ऐसे 5 मिनिमम 7 या कभी कभार 15 दिन भी देना पड़ता है। इट इज वेरी गुड इफेक्टिव ऑन ऑल वात डिसऑर्डर्स। सो जितने भी पोस्ट कोविड जॉइंट पेन के प्रॉब्लम्स है या पोस्ट कोविड नहीं है, ऐसे भी उनको आर्थराइटिस तकलीफें है, वात रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लोटिंग से इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन,
बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रॉब्लम है, वो सबके लिए बस्ती बहुत इफेक्टिव का है और वो सब सीजन में की जाती है और सब लोग कर सकते हैं। वमन विरेचन नस्य, वमन विरेचन के लिए ये सीजन अभी जो स्प्रिंग है और बाद में समर है, तो ये बहुत अच्छा सीजन है और इसमें जितने भी लोग आप ये प्रोसेस कर सकते हैं जरूर कीजिए और उसका फायदा आप लॉन्ग टर्म महसूस करेंगे। शिरोधारा ये जो प्रोसेस है तो वो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, ब्रेन स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, तो स्पेशली जिन्हें ईयर नोज थ्रोट ब्रेन इसके रिलेटेड कोई तकलीफें है, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी तकलीफें है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर स्ट्रेस है, उनके लिए शिरोधारा बहुत अच्छे से फायदा करता है और दिमाग की सभी क्षमताएं बढ़ जाती है, टेंशन कम होता है, सोचने की ताकत, कंसंट्रेशन पावर, ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अभी पंचकर्म को जो हम एज अ प्रिवेंशन इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेदिक कक्षा और पोस्ट कोविड भी बैक टू नॉर्मल लाइफ आने के लिए और आगे जाके कोई तकलीफ ना हो इसके लिए पंचकर्म का बहुत अच्छे से फायदा होता है। अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन का इसमें रोल क्या है? एक तो पहले ये कुछ लोगों के दिमाग में आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब अभी बहुत सारे लोग वो काढ़ा ले लो, चूर्ण ले लो, तो उसमें स्पेशली नीचे मैंने दिया है कि गिलोय, गुड़वेल, अदरक, शुंठी, तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, हल्दी, ये सब आपको सबको याद हो गया है कि ये हर्ब्स काम करती है, सब उसके काढ़े ले भी रहे हैं। दूध, हल्दी वाला दूध काफी लोग ले रहे हैं। इसमें लौंग, मिर्च, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब डाल के भी काढ़े लिए जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक आपको देखना है, अभी सीजन चेंज हो रहा है। ठंडी में जब आप ये काढ़े ले रहे थे तभी भी जिनकी पित्त प्रकृति थी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन एसिडिक है, उनको इससे तकलीफ होती है। और जिनका कफ नेचुरली बहुत ज्यादा है, कफ टेंडेंसी है, उनको इससे बहुत फायदा होता है। दूध हल्दी, जिनको दूध सूट करता है उनको फायदा करेगा, लेकिन जिनको दूध सूट नहीं करता है, दूध की वजह से तकलीफ होती है, उनको दूध हल्दी नुकसान करेगी। तो और ये जो है ये काढ़ा या ये वनस्पति के चूर्ण जो है ये बेसिक है, लेकिन जितने कोविड के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत पावरफुल मेडिसिन आयुर्वेद ने प्रोवाइड की है। ये कुछ उसमें से ये एग्जाम्पल है कि जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सब इसमें होता है। इवन मर्क्यूरी एंड सल्फर ये भी इसमें होता है। अभी आप बोलेंगे कि ये हेवी मेटल्स पॉइजन करेंगे, सूट नहीं करते हैं, बट दिस इज मेन थिंग दैट दे आर वेरी साइंटिफिकली प्यूरिफाइड। इन आयुर्वेदिक प्रोसेस में ये हेवी मेटल्स जो है बहुत साइंटिफिकली उनको प्यूरिफिकेशन किया जाता है और उनका भस्म बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत साइंटिफिकली होता है। एंड ऑल दैट टेस्टेड भस्मस ओनली आर यूज्ड एंड वी आर टेकिंग मेडिसिन्स फ्रॉम दैट रिलायबल एंड रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसीज। तो इसमें ये लेने के बाद आज तक कोई भी ऐसी एक भी केस नहीं है कि जिसको कोई साइड इफेक्ट हुआ है। तो ये जो मेडिसिन से बहुत इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में इतने अच्छे से काम कर रही है। कितने सारे हमारे कोविड पेशेंट्स के डी डाइमर हाई थे, फेरिटिन हाई थे, जिनको एडमिशन करना जरूरी था, लेकिन ब्रेथलेसनेस आने नहीं दिया प्राणायाम करवा के, और उनके डी डाइमर, फेरिटिन, सीआरपी, एलडीएच जो वैल्यूज थे 2-3 दिन में इतने नीचे आ गए कि हम उन्हें अपने घर में ही पूरा आराम दे सके, उनको हॉस्पिटल एडमिशन हमने अवॉइड किया। इतने ये पावरफुल मेडिसिन आयुर्वेदा में बताए गए हैं। लेकिन वही है कि आपको आपके डॉक्टर के, आयुर्वेदिक डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही जाना है और उसको लेना है। मेरी आपको ये एक विनती है
कि अभी काफी लोगों ने वैक्सीन ले रहे हैं, एक डोज काफी लोगों का हो भी गया है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वैक्सीन लेने के बाद कोविड होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी कोई भी नहीं दे रहे कि अभी वैक्सीनेशन आपने लिया तो आपको होगा ही नहीं। ऐसे कोई भी कंपनी, वैक्सीन कंपनी या कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देते हैं। ये हम ले रहे ताकि सीवियर कॉम्प्लिकेशन में हम ना जाए और कोविड के जो सीवियर स्टेज है, मॉडरेट स्टेज है, वो हमें ना आ जाए, और इसके लिए वो काफी फायदा करेगी। लेकिन ये भी हमें पता है कि आज कोविड है, मे बी 2-3 साल में, 4 साल में कुछ और वायरस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? कितने वैक्सीन हम लेंगे और कितना क्या करेंगे? तो मेन हमारे हाथ में है अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो कभी भी आपको छोटे-छोटे सिम्टम्स भी हो रहे, इवन अभी की जैसे ये सीजन में सर्दी खांसी सबको हो रही है, और जैसे भी आप जा रहे हैं काफी लोगों को कोविड पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो इसमें आप मामूली सिम्टम है तो जल्दबाजी, पैनिक मत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो। कंसल्ट कीजिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को, और ट्रीटमेंट आपके घर में ही आप शुरू करो, तो जिससे आपको आराम मिलेगा और ये बाकी के आगे के झंझट से आप सब बच जाएंगे। अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है, लगता है, फिर हम हॉस्पिटल एडमिट इमीडिएट कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात के लिए हॉस्पिटल में मत जाइए। आपके ये बहुत सिंपल सिंपल मेडिसिन है, उससे आप घर में आप ठीक हो सकते हैं, वो पहले जरूर कीजिए। प्राणायाम, योगा का अभ्यास आप रोज जरूर कीजिए, तो आपको आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो ये नौबत ही नहीं आएगी। शुद्धि क्रिया जिन्होंने सीखी है वो जरूर अपने घर में करते जाओ। शुद्धि क्रिया जिन्होंने नहीं सीखी है, वापस हम गीता मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कमिंग 1 या 2 हफ्ते में एक शनिवार में वापस एक दिन सुबह वो शुद्धि क्रिया का सेशन ले, ताकि जो लोग वापस जलनेती, वमन, शंख प्रक्षालन सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे और करेंगे। सो ये सब जो कॉम्बिनेशन है वो आपको हेल्दी रखने के लिए, और सिर्फ कोविड से नहीं, बाकी बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत अच्छे से फायदा करेगा। तो कुछ भी आपको तकलीफ है हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए, पैनिक मत होइए, और दूसरों को, घर वालों को भी पैनिक मत होने दीजिए। एंड एंजॉय द लाइफ, इट इज वेरी हेल्दी, हैप्पी, beautiful life, and we have to enjoy it. So your mental happiness is very important in each and every condition. So thank you for listening me. अभी कोई important questions किसी के मन में है, आपको चैट बार में डालना है। अगर किसी ने डाला है तो गीता मैडम आप मुझे बता दो। किसी ने चैट्स में डाइट के ऊपर हम एक सेशन सेपरेटली रखने वाले हैं, क्योंकि डाइट ये छोटा मोटा ये आपका बहुत निजी मामला है, बहुत सेंसिटिव इशू है, सब लोगों को डाइट के बारे में बहुत कुछ पूछना है। तो हो सकता है हम 2 या 3 हफ्ते के बाद और एक डाइट के ऊपर स्पेशल सेशन रखेंगे। Ma'am, there is a couple of questions on why are milkshakes harmful? Means they're surprised that why milkshakes are harmful. Then the second was like there are 2 questions on milkshake, and the next was what are precautions after the vaccine? ओके, मिल्क शेक में फ्रूट मिल्क शेक, कोई भी फल और दूध साथ में नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए फ्रूट मिल्क शेक अवॉइड करना है। लेकिन ड्राई फ्रूट मिल्क शेक आप ले सकते हैं, कॉफी, ड्रिंकिंग चॉकलेट, ये जो मिल्क शेक्स है वो आप ले सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना नहीं है। लेकिन मिल्क शेक भी आप ये सीजन में, अभी वसंत ऋतु मार्च एंड तक कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए। अप्रैल में आप ही का है, फिर आप ले लो। आइसक्रीम भी फ्रूट वाले आइसक्रीम अवॉइड कीजिए,
उसमें भी बाकी जो है बटर स्कॉच है, चॉकलेट है, अभी कितने फ्लेवर है मैं क्या बताऊं, आपको ज्यादा पता है। तो फल और दूध, ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रिकॉशन, एक तो जैसे क्राउडेड एरिया में आपको जाना अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें वायरस ऑलरेडी आपके शरीर में हाफ डेड फॉर्म जो भी है, लेकिन वो इंजेक्ट हुआ है, तो उसमें आपको खुद को वापस थोड़ा सा सेपरेट ही रखना है फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम क्राउडेड एरिया। और उसमें थोड़े दिन आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सेंसिटिव रहती है, इसलिए आपको प्रोटेक्ट करना है सभी चीजों से। और कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद हल्की सी सर्दी या माइल्ड फटीग, हेडेक, ऐसे छोटे छोटे कुछ सिम्टम कुछ लोगों को हो रहे, सब लोगों को नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हो रहे, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। उसके लिए जैसे मैंने छोटी मोटी हल्की जो होती है दवाइयां, वो आप ले सकते हैं। और उसको बहुत सेफ जो आप क्या कर सकते हैं, नाक में तेल डालना, जैसे स्टीम बाफ लेना भी अभी ये सीजन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऑलरेडी इतना गर्म है, उसमें हम कितनी बाफ ले। तो आप दिन में एक बार, जिनकी कफ की टेंडेंसी है, बहुत ज्यादा रनिंग नोज है, वो स्टीम ले सकते हैं। जिनका ड्राई नोज है उनको स्टीम से तकलीफ होगी, लेकिन उसमें भी जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, अणु तेल या वचा तेल, कुछ भी नहीं है तो गाय का, प्योर गाय का घी, वो आपको नाक में डालना है जरूर। और वो आप सुबह और रात को दोनों समय भी डाल सकते हैं। इसमें आपका कफ कंजेशन एकदम कम हो जाता है, क्लियर होता है। नाक में अगर कोई वायरस जागता भी है, क्योंकि हमें पता है हम मास्क पूरा नीचे लेके ही हर जगह पे बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो मास्क हमें कितना प्रोटेक्ट कर रहा है पता नहीं। मास्क भी हम कितना बिना धोए डाल रहे हैं, कितना गंदा डाल रहे हैं वो भी पता नहीं, जाने दो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर ये हम तेल अंदर डालते हैं तो नेजल मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वहां पर कोई वायरस टिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये नस्य का मतलब तेल नाक में डालना जो है, उसका आप जरूर फायदा उठाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और किसी को कुछ क्वेश्चन? और कोई प्रॉब्लम? Ma'am, is it necessary to take the vaccine? अभी ये हर एक का अपना पर्सनल इश्यू है। इसमें अगर आपका हेल्थ अभी, आपकी कंडीशन स्टेबल नहीं है, जिनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई टैबलेट्स क्रॉनिक डिसीजेस है और जिनके लिए स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं, ऐसी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनके लिए उनके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही वैक्सीन लेना है। अदरवाइज डोंट गो ऑन योर ओन, क्योंकि पहले ही अगर आपकी तबीयत अनस्टेबल है तो उसमें ये ज्यादा आप अनस्टेबल करेंगे। तो जिनका पूरा शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज मेंटेन, कुछ भी वैल्यूज हिल नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे से हेल्थी कंडीशन में है आप, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज कंसल्ट योर डॉक्टर, show them all the reports and then only go for vaccination. स्पेशली जिन्हें अब्रॉड जाना है उनको वो शायद डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसीलिए वो लोगों को लेना जरूरी है। लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ कंडीशन देखो और उसके बाद ही आप जाओ। Okay, thank you, ma'am. Ma'am, Alifia's question was that many countries make vaccination compulsory for travel. So in those terms, it may impede if you don't take vaccine. Yeah, that's why I'm telling those who want to go abroad, you have to take medicine. But just now, if your health condition is not good, wait for few days and then you go for vaccination. अभी लाइन लगा के उधर 3-3 घंटा बैठ के अभी के अभी मिलना ही, लेना ही जरूरी है, ऐसे नहीं है।
And then Mr. Rahul Tanak asks, is there any Ayurvedic remedy for light chin planus? I don't know what it is, but yeah. There are treatment for many chronic disorders, and very effective Ayurvedic medicines are there. We always suggest Ayurvedic medicines, but we are not against of any allopathy medicines. बहुत बार बहुत बीमारियों में एलोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन ये साथ साथ में लेने पड़ते हैं, लेने से बहुत अच्छे से फायदा होता है। जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास है जो डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, कोई इंसुलिन पे है, उनको हम उसके साथ हमारी दवाइयां शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि इमीडिएट उनके जो अनकंट्रोल्ड पैरामीटर्स थे वो कम होने शुरू हो जाते हैं, और जो कॉम्प्लिकेशंस होती है हर एक बीमारी की दवाइयों की, ये कॉम्प्लिकेशंस कम होना शुरू हो जाता है या अवॉइड किया जाता है, और धीरे धीरे आप नॉर्मल टोटल रिवर्सल के ऊपर भी आते हैं। सो बहुत सारी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स उसमें एलोपैथी दवाई के साथ अगर हम आयुर्वेदिक शुरू करेंगे, योगा शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, तो वो कोई भी बीमारी हो। और जहाँ पे लिमिटेशंस, हर एक साइंस के अपने लिमिटेशंस है, तो जहाँ पे लिमिटेशंस है वहां पे हम खुल के बोलते हैं कि ये अभी यहाँ नहीं होगा। जैसे आपको बहुत ज्यादा गॉल स्टोन का पेन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उसका सीवियर पेन है, हम बोलते हैं जाके आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर किडनी स्टोन का पेन है सीवियर, हम बोलते हैं आपको बिल्कुल हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको किडनी स्टोन का पेन इमीडिएट रिलीफ करके, स्टोन डिसॉल्व करके बहुत स्मूथली निकाला जाता है। के लिए हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे, लेकिन गॉलस्टोन के लिए जरूर भेजेंगे। हर्निया आपको हुआ है तो हर्निया के ऑपरेशन के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। हम बोलते हैं हर्निया योगा से ठीक नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम्स, जहाँ पे जो लिमिटेशंस है, वो हम इमीडिएटली आपको बोल देते हैं कि ये इससे होगा, ये इससे नहीं होगा, ये दोनों साइंस के कॉम्बिनेशन से होगा। Ma'am, Rahul actually says it's mouth inflammation. So are there Ayurvedic medicines to treat this? Yes, definitely. There are medicines for many kinds of ulcers, mouth inflammations. Yeah, I guess the questions are done. That's all the questions, at least in the chat. So हमारे स्क्रीन पे कुछ ये आ गया है क्या मैम? नहीं, okay. Is there any Ayurvedic treatment for enlarged prostate? This Yes, is the next question. there are medicines and there are Basti treatment, as I mentioned, that is also very helpful in enlarged prostate. कोविड छोड़ के बाद में दूसरी बात कर रहे हैं। आपने कोविड के बारे में काफी अच्छा मैं सिर्फ आज कोविड पढ़ के आई हूँ, आज मैं दूसरा कोई बात नहीं करूंगी। हेलो Yes, madam. हाँ, Doctor, is there any cure for bradycardia, that is low heart rate and high BP? yes, definitely. Our regular pranayam session, they definitely help you. Bradycardia, and again we have to find out reasons why that is there is bradycardia. It is only related to heart or some hormones, that also we should know, but definitely it helps. If it is natural bradycardia, कुछ लोगों का ब्रीदिंग रेट नेचुरल कम होता है, तो वो अगर नेचुरली आपका वैसे है और उसको आपके कोई तकलीफ नहीं है उसकी वजह से, तो दैट इज योर नेचुरल थिंग। बट उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम रहना, ब्रेथलेसनेस होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं शरीर में, तो उसके लिए जरूर ट्रीटमेंट है, and especially pranayam will help you a lot. Can I consult you tomorrow for this? Yes. Okay, thank you.
Anybody else has some questions? Because I think it will be time for us to wrap up now. So, एक अभी मैं बताऊंगी आपको कि हमारा आपको जो भी क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, आप हमें मैसेज के ऊपर भेजिए. हमारे टीचर्स आपके कांटेक्ट में रहते हैं, उनके साथ बात करो. हमारे सेंटर के फोन के व्हाट्सएप मैसेज में आपके क्वेरीज भेज दीजिए. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू आंसर यू. Keep following us on our YouTube channel. क्षितिज सेंटर ऑफ योग एंड आयुर्वेद का YouTube चैनल है. यहाँ पे हमने जो भी पहले प्रोग्राम किए हुए हैं, फेसबुक लाइव शोज किए हैं, बहुत सारे आपको योगा के वीडियोस मिलेंगे. बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए क्या योगा करना है, उसके भी आपको वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर मिलेंगे. क्षितिज सेंटर ऑफ योग एंड आयुर्वेद, ये YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. फेसबुक का पेज है हमारा, उसको भी आप रेगुलर फॉलो कीजिए. वहां पर भी काफी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं, लोगों के फीडबैक होते हैं और बहुत जानकारी आपको मिलेगी. अपकमिंग इवेंट्स की भी जानकारी देते जाएंगे, वो भी मिलेगी. एंड यू कैन शेयर दिस वीडियोस एंड इंफॉर्मेशन टू एनीबडी. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो उसको आप जरूर देखिए. तो उसमें भी आपके काफी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करें. हमारी वेबसाइट जो है www.kshitijcenter.com, इसमें भी आपको बहुत सारे विषयों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी. बहुत सारे फोटोज है, बहुत सारे वीडियोस है, आर्टिकल्स है, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा. ओके एवरीबडी, so we'll call it a wrap. या. Thank you, ma'am. Thank you on behalf of everyone. Thank you very Yeah. much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. very Informative. informative. Thank you, ma'am. Wonderful session. Thank you, doctor. Thank you. Thank you very much, ma'am. Good session. Really very